हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमसाइक्लोपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का 5th लेक्चर लेके आए हैं और हमारे प्रीवियस लेक्चर के लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जिन बच्चों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, दे कैन आल्सो सी दोज लेक्चर्स। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कवर करने वाले हैं and we will be doing numericals based on this. So let us start with depression in freezing point. तो देखो स्टूडेंट्स, freezing point क्या होता है? It is a temperature at which solid and liquid forms of a substance are in equilibrium. That is, the solid and liquid forms of substance have same vapor pressure. This point is very very important. When we add non-volatile solute to the volatile solvent, then the vapor pressure of resultant solution decreases, then boiling point increases and freezing point decreases. This we have covered. Okay, so TF क्या होता है? Freezing point of solution. TF not freezing point of pure solid. Students याद रखना, not रहेगा ना तो उसको pure solvent कहते हैं, ठीक है? So delta TF क्या होगा? Depression in freezing point. So let us start with depression in freezing point. Let us understand the graph of vapor pressure versus temperature for this colligative property. So let us discuss this in detail. So students याद रखना, so suppose if you are plotting the graph of vapor pressure versus temperature, let's say एक particular temperature पे ये जो point है let's say ऊपर है और ये जो point है नीचे है, तो particular temperature पे higher pressure किसका रहता है? Pure solvent का, right? And lower किसका रहता है? Solution का, ठीक है? हम लोगों ने कैसे किया था पहले, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक कर्व बढ़ते जाएगा, राइट ना, और ये नीचे वाला कर्व भी ऐसा बढ़ते जाएगा, फिर 1 एटमॉस्फेयर पे वो मीट करेगा, ठीक है? तो वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? कूल करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर कम करते जाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, राइट? नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एज वी आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, vapor pressure of pure solid is keeping on decreasing, है ना? So let's say at one particular point this pure solvent has started to convert in solid state. So from this point onwards we are having curve for solid state. So this is a vapor pressure curve for solid solvent. ये दोनों में difference है because ये liquid state है, liquid state का vapor pressure change होता है with change in temperature, but solid state will not have that much effect on vapor pressure. इसके लिए ये कर्व थोड़ा अलग है। सो ये पॉइंट से सॉलिड सॉल्वेंट डिस्कस करें, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे हमारा लिक्विड सॉल्वेंट एज वेल एज सॉलिड सॉल्वेंट इट इज एक्सिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम, एंड ये पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर क्या है? सेम है। तो टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नाउ एज वी कीपिंग ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, वेपर प्रेशर विल कीप ऑन डिक्रीज। एट दिस पॉइंट vapor pressure of liquid solution and solid solution have same value of vapor pressure. So temperature corresponding this point represent freezing point of solution. So we can say that as we add non-volatile solute to the volatile solvent, freezing point of solution decreases. So delta TF is equal to TF naught minus T. This you remember. So let us discuss this curve. Students, AB जो curve है, it represents the vapor pressure curve of solid solvent. Curve CD जो है, it represents the vapor pressure curve of liquid solvent, and curve EF represents the vapor pressure curve of solution. And point B is the point of intersection of curve of liquid solvent and the solid solvent. So point B is the point at which both solid and liquid forms of pure solvent are in equilibrium. And at this point we say vapor pressure of both states, that is solid state and the liquid state of the pure solvent, have same value of vapor pressure, correct? So temperature corresponding to this point is called as freezing point of pure solid, that is TF. ये हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट सेम वे में पॉइंट E जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ये फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस T। नाउ स्टूडेंट्स याद रखो, why freezing point of solvent is lowered on dissolving a non-volatile solute to, ये इसका रीजन सीखना है हमको। सो पहला देखो, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग the molecules are
large enough to cause the change of phase from liquid to solid. So in a solution क्या होता है, solid molecules are separated from each other because of solute molecules. तो solid molecule दूर दूर है, solid molecule दूर होने की वजह से separation of solid molecule in a solution is more than in a pure solid. Correct, and this results in decreasing attractive forces between the solid molecules, and consequently temperature of the solution is lowered below the freezing point to cause the phase change. है ना? That's why we say that freezing point of the solvent gets decreased when we add non-volatile solute into it. ठीक है? Expression for depression in freezing point. तो बच्चों याद रखो, जैसे कि हम लोग ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कराया था, सेम मैनर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीएफ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. उधर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डेल्टा टीबी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. इफ यू वांट टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, वी नीड टू इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट कॉल्ड एज केएफ. So KF is a molar depression constant or freezing point depression constant, or we can also call it as cryoscopic constant. And students याद रखो, ये जो है it depends only on the nature of solvent. So अगर न्यूमेरिकल में एक ही सॉल्वेंट यूज किया है to dissolve different solutes in different cases, then in all cases याद रखो we have to use same value of KF. ठीक है ना? So अगर हमको KF को डिफाइन करना है तो हम लोगों ने क्या सिखाया था, m को इक्वल टू 1 लेना है. अगर मैं m को 1 लेता हूं तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF. तो KF को कैसे डिफाइन करेंगे, KF is defined as the depression in freezing point produced when 1 molar solution of non-volatile solute is dissolved. Correct? So units of KF क्या रहेगा, Kelvin kg पर. Students, let us discuss the calculation of molar mass of solute. So delta TF is equals to what? KF into m होता है. मोलैलिटी को क्या पुट करेंगे, W2 upon M2 and W1 in kg. On rearranging the equation हमें क्या मिलेगा, M2 is equals to KF into W2 upon W1 in kg into delta T. So students याद रखो, ये जो फॉर्मूला है, this formula can be used when the quantities are in the following units. So KF क्या है, is a molar depression constant, इसका यूनिट्स केल्विन kg पर मोल होना चाहिए. W2 क्या है, mass of solute in grams. डेल्टा TF क्या है, depression in freezing point and it has to be in Kelvin. तो स्टूडेंट्स याद रखो, ये जो है ना, ये टेम्परेचर चेंज है, ये केल्विन में भी और डिग्रीज में भी इसका रहेगा, सेम रहेगा. जैसे कि बताता हूं, डेल्टा TF क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF. लेट अस से TF नॉट वी विल अज्यूम इट एज 20 डिग्रीज. सो इन केल्विन कितना हो जाएगा, ये 273 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा, 293 केल्विन. तो हमने केल्विन में भी लिख दिया. और लेट से TF को हम लोग मानते हैं 18 डिग्रीज. तो 273 प्लस 18 अगर देखते हैं तो कितना आ जाएगा, इट विल कम्स आउट टू बी 291 केल्विन. सो इफ यू कैलकुलेट डेल्टा TF, सो इट विल बी व्हाट, अगर हमको डिग्रीज में कैलकुलेट करना है तो 20 माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 डिग्रीज आ जाएगा. सपोज मैं केल्विन के फॉर्म में सब्सट्रैक्ट करता हूं तो 293 माइनस 291 करेंगे तो भी 2 केल्विन आ जाएगा. So delta TF has got same in degrees as well as in kelvins. Understood students? Okay. And W1 is the mass of solvent in kg. So students याद रखो, एग्जाम में ऐसा हो सकता है, बोलोगे ना मास ऑफ सोल्यूट को ग्राम के बदले किलोग्राम में देंगे, अदरवाइज KF को केल्विन kg के बदले केल्विन ग्राम के फॉर्म में दे सकते हैं या डिफरेंट यूनिट्स में दे सकते हैं. तो क्या करना है, अगर आपको ये क्वांटिटी जो अपने डिजायर्ड यूनिट से उसके फॉर्म में नहीं है तो क्या करना है, उसको पहले अब हमारे डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन ओनली यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स? सो लेट अस डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. सो KF इज इक्वल्स टू RT नॉट F स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू LF. नाउ LF क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन जूल्स पर ग्राम, और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन जूल्स पर मोल. ये रिलेशनशिप है. So these are the factors. TF naught is the freezing point of pure liquid. Latent heat of fusion in joules per gram of solvent. Enthalpy of fusion is latent heat of fusion per mole of solvent. और ये molar mass of solvent in grams per mole. R is a gas constant. R का वैल्यू 8.314 joules per Kelvin per mole लेंगे कब,
जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो जूल्स में रहेगा तो हम लोग आर का वैल्यू जूल्स में लेंगे, अगर ये कैलोरीज में रहेगा तो आर का वैल्यू कैलोरीज में लेंगे। ठीक है, लेट अस डू वन न्यूमेरिकल। 45 grams of ethylene glycol is mixed with 600 grams of water. Calculate the freezing point depression, okay, and freezing point of solution force. So पहला यहाँ पे क्या लिया, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पहला पूछा है एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा है। पहले हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे। सोल्यूट क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट कितना है स्टूडेंट्स, 45 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 600 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे तो कितना है, इट विल कम्स आउट टू बी 62 ग्राम्स पर मोल। तो अभी कैसा करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, दैट इज डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू एम। तो पहले मोलालिटी निकालेंगे, फिर उसको केएफ से मल्टीप्लाई करके डेल्टा टीएफ निकालेंगे और फिर डेल्टा टीएफ से हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, सो देखो मोलालिटी कैलकुलेशन, पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा मोलालिटी के लिए। सो N2 इज इक्वल्स टू W2 by M2, दैट इज 45/62, करेक्ट ना। तो ये ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल हो गए, तो दिस विल कम्स आउट टू बी इन मोल्स। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें दिया, 600 ग्राम, इसको यहाँ पे 0.6 kg में कन्वर्ट कर दिया। तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। देन इफ यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यू विल गेट मोलालिटी एज 1.2 मोल्स पर kg। सो let us first calculate depression in freezing point. Delta TF is equals to KF into M. वाटर के लिए KF क्या रहता है, 1.86 केल्विन kg पर मोल into 1.2 मोल्स पर kg। ये मोल्स कैंसिल हो जाएगा, kg कैंसिल हो जाएगा, आंसर किसमें आ जाएगा, केल्विन में। तो डेल्टा TF क्या होता है स्टूडेंट्स, TF नॉट माइनस TF, दैट इज इक्वल टू दिस। TF नॉट क्या है, 273.15, बिकॉज वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 273.15 ना, इसको ऐसा सब्सट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 270.90 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, 1 grams of non-electrolytic solute is dissolved in 50 grams of benzene, lowers the freezing point of benzene by 0.4 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find out the molar mass of solute. So again we have learned the expression for calculation of molar mass of solute. We will substitute the value and we will get the answer. चलो हम लोग लिखते हैं given data. सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया, 50 ग्राम, करेक्ट। इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे 0.05 केजी। केएफ फॉर बेंजीन 5.12 केल्विन केजी पर मोल। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम M2 वी हैव टू फाइंड आउट। सो M2 इज इक्वल्स टू KF into W2 अपॉन W1 into डेल्टा TF। तो पहला चेक करेंगे जो भी दिया है क्वांटिटीज हमारा डिजायर्ड यूनिट्स में है क्या, यस इट इज इन डिजायर्ड यूनिट्स। तो KF का यूनिट्स क्या आएगा, 5.12 केल्विन केजी पर मोल, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1 ग्राम। W1 कितना है, 0.05 kg, है ना। एंड डेल्टा TF कितना है, 0.4 केल्विन। तो इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट आंसर। इसमें यूनिट कन्वर्जन कैसा है, केजी गए घूमने, है ना, केल्विन गए घूमने, तो आंसर किसमें आएगा, ग्राम्स पर मोल में। समझा। Now let us understand the concept of osmosis. Osmosis is the spontaneous unidirectional flow of solvent molecule from the solutions of lower concentration to the solution of higher concentration, or from pure solvent to the solution through semi-permeable membrane is called as osmosis. Okay, now what do you mean by semi-permeable membrane? It is the membrane that allows only to the flow of solvent molecules. That membrane is called a semi-permeable membrane. ठीक है, examples pig's bladder, parchment paper, cellophane, copper ferrocyanide. These are the examples of semi-permeable membranes. So let us understand the concept of osmosis in detail. So let's say we are having two compartments and ये दो compartments है, they are separated by semi-permeable membrane. यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सोल्यूशन, और हमारे पास और भी केस क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना फ्लो इज हैपनिंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इट इज अलाउइंग टू फ्लो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं हो रहे। अभी देखो ये सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है स्टूडेंट्स, मतलब सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पे।
करेक्ट ना। तो यहाँ पे सॉल्वेंट मूव हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ही जा रहा है, लेकिन सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। पर हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट, करेक्ट ना। तो दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इंप्लाइज इट कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब इट कंटेन्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। इसके लिए फ्लो इज हैपनिंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ओनली। बट हम लोग हमेशा कॉन्सेंट्रेशन को कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? सोल्यूट के अमाउंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दैट्स द डेफिनेशन। दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, सो let us understand now the concept of osmotic pressure. Osmotic pressure is represented by symbol pi. So देखो students, this was the setup of osmosis. यहाँ पे solution of lower concentration है और यहाँ पे solution of higher concentration, right? और यहाँ पे pure solvent है और यहाँ पे solution, correct? So osmosis के हिसाब से जो net flow of solid molecule it is happening from here to here, correct? जैसे सॉलिड मॉलिक्यूल कंपार्टमेंट नंबर 1 से कंपार्टमेंट नंबर 2 में आ रहा है, वैसे वैसे कंपार्टमेंट नंबर 2 में क्या हो रहा है? प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। ठीक है ना। तो लेट्स से इफ वी अप्लाई द प्रेशर टू द साइड ऑफ कंपार्टमेंट नंबर 2, दैट इज इफ वी अप्लाई द प्रेशर टू द साइड ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू जस्ट stop the flow of solid molecules or to just stop osmosis, then that pressure is called as osmotic pressure. Understood? So minimum excess pressure that has to be applied to the solution side or solution of higher concentration side to just stop the flow of solid molecule across the semi-permeable membrane is called as osmotic pressure. So that's the definition. So osmotic pressure pi is equal to CRT, where C is the molar concentration, that is molarity. So T is a temperature in Kelvin, R is a gas constant, and gas constant has units. ये ऑस्मोटिक प्रेशर किस में रहता है? एटमॉस्फेयर में रहेगा या बार में रहेगा। तो R क्या रहेगा? R का वैल्यू 0.0821 लीटर्स एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल और ये 0.0831 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, इसको यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो वी विल गेट दिस। So this is the formula for osmotic pressure. So calculation of molar mass of solute from pi, तो इसको अगर solve करेंगे so we will get molar mass of solute as this. ठीक है, so students याद रखो this formula is valid when the quantities are in the following units. So W2, that is the mass of solute, it has to be in gram. Molar mass of solute has to be in grams per mole. R is a gas constant. ठीक है, अगर pi एटमॉस्फेयर में है तो R की ये वैल्यू लेंगे हम लोग, pi बार में है तो R की ये वैल्यू लेंगे और V is the volume of solution in liters and T is the temperature in Kelvin. So based on this we are having three types of solution. Isotonic solution. Isotonic solution मतलब क्या होता है? Solutions having same osmotic pressure are said to be isotonic with each other. ठीक है, and solutions having same concentration are isotonic. Same osmotic pressure रहेगा तो same concentration भी, ठीक है ना, because we know that pi is directly proportional to C. So 0.1 molar urea and 0.1 molar sucrose are isotonic with each other. Clear? Hypertonic solution and hypotonic solution. If two solutions have unequal osmotic pressure, then the more concentrated solution with the higher osmotic pressure is said to be hypertonic. And more dilute solution having lower osmotic pressure is said to be hypotonic. Clear? So let's say 0.5 molar sucrose and 0.1 molar urea. So sucrose solution with high osmotic pressure is said to be hypertonic, and urea solution with a low concentration and low osmotic pressure is said to be hypotonic. याद हो गया? And these are the conversion factors, students. These conversion factors has to be remembered by you, ठीक है, for solving lot of numericals. Let us do some numericals. What is the molar mass of solute if the solution is prepared by dissolving 0.822 grams of it in 300 ml of water, has an osmotic pressure of 149 mm of Hg at 298 Kelvin. So given data, यहाँ पे solvent क्या है? Water. Mass of solute कितना दिया है? 0.822 grams. Volume of water क्या है? यहाँ पे जो कि मास ऑफ सोल्यूट बहुत कम है, तो हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर को अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेंगे, ठीक है ना, दैट इज 300 ml, दैट इज 0.3 लीटर्स. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है?
पाई 149 mm ऑफ Hg। तो स्टूडेंट्स mm ऑफ Hg से एटमॉस्फेयर में जाना है तो 760 से डिवाइड करते हैं। सो दिस इज द वैल्यू इन एटमॉस्फेयर। तो टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन और M2 हमको फाइंड आउट करना है। सो M2 क्या है, W2 RT अपॉन पाई इंटू V। इफ यू जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू यू विल गेट M2 as 342 grams per mole। ठीक है, लेट अस डू वन मोर न्यूमेरिकल। 200 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ml। So 200 centimeter cube of an aqueous solution of protein contains 1.26 grams of protein. Osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10⁻³ bar. Calculate molar mass of protein. तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करना है। मास ऑफ प्रोटीन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 200 ml है, उसको 0.2 लीटर्स लिखेंगे और पाई की वैल्यू बार में दी है, आर की वैल्यू भी हमें बार में लिखनी पड़ेगी, राइट। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा। लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू। तो देखो बार बार कैंसिल हो गया है ना, देन केल्विन केल्विन कैंसिल, लीटर्स लीटर्स कैंसिल। देन इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट आंसर एज 61,039 ग्राम्स पर मोल। फिर इसको कन्वर्ट किया किलोग्राम में, देन यू विल गेट 61.039 इन केजी पर मोल, करेक्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। So this we are discussing the concept of reverse osmosis by taking the example of desalination of seawater. Now students, हर एक घर में वाटर प्यूरिफायर रहता है और वाटर प्यूरिफायर में रिवर्स ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट बहुत यूज करते हैं, इसको हम लोग RO कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे ना दो, ये दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और यहाँ पे ये सी वाटर है और ये फ्रेश वाटर है, ठीक है ना, मतलब प्योर वाटर। ऑस्मोसिस के हिसाब से फ्लो ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल कहां से कहां पे होगा, फ्रेश वाटर से सी वाटर में, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाए और ये साइड पे हम लोग ने अगर प्रेशर अप्लाई कर दिया टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल, देन दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बट स्टूडेंट्स जस्ट थिंक दैट अगर सपोज यहाँ पे हम लोग ने प्रेशर अप्लाई किया ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन दिस फ्लो विल गेट रिवर्स्ड। सो इसके अंदर के जो भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, देन दैट सॉलिड मॉलिक्यूल विल पास फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। So when we apply pressure larger than the osmotic pressure, then the flow of osmosis gets reversed and solvent then flows from solution into the pure solvent through a semi-permeable membrane, and this phenomenon is called as reverse osmosis. ठीक है? In case of reverse osmosis, very high pressure has to be applied for this semi-permeable membrane. Generally used in this case is cellulose acetate. It is placed over the suitable support, and only water molecule can pass through this membrane. But ions and other impurities present in the seawater cannot. ठीक है? Now it should be remembered solution as such has only vapor pressure. It will develop osmotic pressure when it is placed in the contact with a pure solvent or less concentrated solution through semi-permeable membrane. This point is very very important. Now summary, हम लोग ने अभी तक क्या क्या देखा स्टूडेंट्स, colligative properties are obtained when non-volatile solute is added to the volatile solvent. ठीक है ना? So when a non-volatile solute is non-electrolytic, non-electrolytic मतलब the solute that does not undergo dissociation or association in the solution, then the observed or experimental value of colligative property is same to the calculated value or theoretical value of colligative property. Okay, so that means we will not get any deviation in case of non-electrolytic solute. In case of non-electrolytic and non-volatile solute, we use all these formulas. So these formulas are valid only in case of non-electrolytic and non-volatile solutes. This point you have to remember. Okay, these all colligative properties we have covered, and these above formulas will only give the calculated value of colligative property. मतलब अगर आपको बोला है calculated value और theoretical value of colligative property निकालना है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। In case of electrolytic solutes, we will get deviations. ठीक है स्टूडेंट्स। So ऑब्जर्व वैल्यू को ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं और कैलकुलेटेड वैल्यू को थ्योरेटिकल वैल्यू कहते हैं। दिस डिफरेंस यू नीड टू रिमेंबर। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक आवर एफर्ट्स, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विथ मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।